دھاندلی ووٹنگ ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ ای ووٹنگ مشین سے دھاندلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ٹائم ختم ہوتے ہی بٹن دبانے سے رزلٹ آ جائے گا۔ اپوزیشن ہار جائے تب بھی انتخابی نتیجہ تسلیم کر لے گی۔ کوشش ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے اوورسیز پاکستانی ووٹ کاسٹ کر سکیں۔ وزیراعظم عمران خان کا پنجاب کے لیے نادرہ وراثتی سرٹیفکیٹ کے اجرا کی تقریب سے خطاب۔ بولے قبضہ گروپ متحرک ہو گئے ہیں۔ آئی جی سے پوچھا تو پتہ چلا جب وہ کارروائی کرتے ہیں تو ملزمان ضمانتیں کرا لیتے ہیں۔ سزائیں اتنی کم اور پیسہ اتنا زیادہ ہے کہ کسی کو ڈر ہی نہیں۔ کرپشن پکڑنی ہے، ملک کا قرضہ معاف کرانا ہے تو وزیر اعظم ہاؤس پر چھاپا مارو۔ مریم نواز کا ایف آئی اے کو چیلنج، کہا پاکستان اس لیے گرے لسٹ سے نہیں نکلتا کیونکہ سب سے بڑا منی لانڈرر ملک پر قابض ہے۔ آزاد کشمیر میں خطاب کرتے ہوئے کہا الیکشن چوری کرو، ڈبے اٹھا کر بھاگ جاؤ، ڈبوں میں بیٹھ جاؤ یا پورا الیکشن کمیشن اغوا کر لو۔ آزاد کشمیر اپنا فیصلہ سنا چکا۔ عمران خان نے اعتراف کر لیا کہ وہ عوام کی نہیں سلیکٹرز کی چوائس ہے۔ ایک کرسی کے لیے اپنی 22 سالہ جدوجہد کو تباہ و برباد کر دیا۔ سازشوں سے حاصل اقتدار نہیں بلکہ شرمندگی، بدنامی اور رسوائی ہوتی ہے۔ تم تو کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک کر آ گئے ہو۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے عمران خان کو مقدر کا سکندر قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بہت سے وزیر اعظموں کے ساتھ کام کیا، آپ جتنی محنت کرتے کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ نے آپ کو دیوار کے پیچھے دیکھنے کی بھی صلاحیت دی ہے۔ آپ نے ان چوروں کو جیل میں ڈالا جن کی وجہ سے مہنگائی ہوئی۔ آپ کشمیر میں حکومت بنائیں گے، ملک میں اگلی حکومت بھی آپ کی ہوگی۔ مودی جب کشمیریوں پر ظلم کر رہا تھا تو آپ جندال سے کاروباری تعلقات بنا رہے تھے۔ مودی کی بھتیجی بتائے کہ 2015 وفا مشترکہ اعلامیے میں مسئلہ کشمیر کیوں شامل نہیں کیا گیا؟ کیا نواز شریف نے ایسا مودی کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا؟ وزیر مملکت فاروق حبیب کا ٹویٹ لکھا، کشمیری جانتے ہیں عمران خان ان کا سچا اور دلیر وکیل ہے۔ پہلے ہر جمعے کو 2 منٹ کی خاموشی، اب کشمیر پر مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ اسلام آباد میں ایک سڑک کا نام سری نگر رکھنے پر اکتفا کیا گیا۔ سندھ کے وزیر تعلیم کا آزاد کشمیر میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا پیپلز پارٹی اقتدار میں تھی تو کشمیر کا مقدمہ زیادہ بہتر انداز سے لڑا جاتا تھا۔ بھٹو نے کہا تھا کشمیر پر نیند میں بھی غلطی نہیں کر سکتا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو غدار کہنے پر سینٹ میں احتجاج۔ پیپلز پارٹی رہنما مولا بخش چانڈیوں کے حکومتی اراکین کو بد زبان کہنے پر بھی ہنگامہ آرائی۔ رضا ربانی کا کہنا تھا کہ جس شخص نے ایٹمی پروگرام پر سمجھوتا نہیں کیا اسے غدار قرار دیا جا رہا ہے۔ پگڑی اچھالنے کی سیاست تباہی کی طرف لے جائے گی۔ رضا ربانی اور شہری رحمان نے حکومت مخالف نعرے لگوائے۔ سینٹ میں قائد ایوان شہزاد وسیم نے کہا مشرقی پاکستان جانے والوں کی ٹانگیں توڑنے کی باتیں نہیں ہوئی۔ بلاول امریکہ میں اپنی سی وی لے کر بیٹھا ہے۔ دوائی لینے باہر جانے والا واپس نہیں آیا۔ یہاں کوئی دودھ کا دھلا نہیں۔ اپوزیشن نے معافی نہ مانگی تو اپنے اراکین کو بھی نہیں روک سکوں گا۔ چیئرمین سینٹ کا بھی ارکان کو انتباہ، کہا نشستوں پر احتجاج کریں، آئندہ کوئی ڈائز کی جانب آیا تو برداشت نہیں کروں گا۔ ماسک کا استعمال نہ، ویکسین سرٹیفکیٹ کی چیکنگ، ایس او پیز کی مسلسل خلاف ورزیوں پر سندھ حکومت کے اہم فیصلے، سکولز، ہوٹلز اور تفریحی مقامات بند کرنے کا اعلان۔ 8ویں جماعت تک سکول جمعے سے بند ہوں گے۔ میٹرک اور اس سے اوپر کے تعلیمی ادارے امتحانات تک کھلے رہیں گے۔ انڈور ڈائننگ، سنیما، جمز، پارک اور تفریحی مقامات بھی جمعے سے بند کر دیے جائیں گے۔ کراچی میں کورونا پھیلنے کی شرح 17% سے تجاوز کر گئی۔ صوبے میں شرح 7.4% رہی۔ مختلف اقسام کے 356 کیسز رپورٹ ہو چکے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش، ڈیفنس، آئی چندری گڑھ روڈ، صدر، لانڈھی اور اورنگی میں برسات۔ سندھ سیکریٹریٹ کے قریب درخت گاڑیوں پر گر پڑا۔
बिजली की तारें भी टूट गईं। शाहराह फैसल पर FTC से मेट्रो पोल तक पानी जमा, ट्रैफिक जैम। रिंग रोड केस की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद और चेयरमैन लैंड एक्विजिशन वसीम ताबिश गिरफ्तार। DG एंटी करप्शन गौहर नफीस कहते हैं वसीम ताबिश ने करोड़ों रुपए की जायदाद खरीदी। साबिक कमिश्नर के असासाजात की इंक्वायरी जारी है। केस नैब को भेजने का फैसला किया है। नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी के काम न करने का बयान बेबुनियाद करार। वजीर खजाना का बयान मन घड़त और हकाइक के मुनाफी है। नैब एलामिया जारी। कौमी एहतसाब ब्यूरो का शौकत तरीन को नैब ऑर्डिनेंस का जायजा लेने का मशवरा। कहा ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ मुकदमात ना होने के बराबर हैं। ब्यूरोक्रेसी आईन और कानून के मुताबिक काम करती है तो डरने की जरूरत नहीं। नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। इलेक्शन शेड्यूल के बाद सरकारी तकर्रियों और तबादलों पर पाबंदी बहाल। आजाद जम्मू और कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन के अहकामात कानूनी करार। अदालत ने इलेक्शन शेड्यूल के बाद सरकारी अहकामात मनसूख करने का हुक्म दे दिया। इंजमाम शुदा अजला की तामीर व तरक्की मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इन इलाकों के अवाम ने मुल्क के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं सूबे इन अजला की तरक्की के लिए अपना हिस्सा डालें। वज़ीर आज़म उज़्बेकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर कल ताशकंद रवाना होंगे। वज़रा कारोबारी अफराद पर मुश्तमिल आला सतह वफ्द भी हमरा होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ताजिक वजीर दिफा की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, मजमूई इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल, ताजिक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल भी ज़ेर गौर। आर्मी चीफ ने कहा दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी मजहबी और सकाफती ताल्लुकात हैं। इलाकाई अमन सिक्योरिटी से मुताल्लिका उमूर पर यकसा मौक़िफ़ है। आर्मी चीफ ने इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ के लिए ताजिकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ताजिक वज़ीर की अमन व इस्तेहकाम, अफगान अमन अमल पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। इंग्लैंड के खिलाफ शिकस्त में सिर्फ खिलाड़ी कसूरवार नहीं, कोचेस भी जिम्मेदार हैं। हेड कोच मिसबाहुल हक का एतराफ़ का सीरीज तवक्कुआत के बरक्स रही। ऐसा लग रहा है हम वहीं खड़े हैं जहां से चले थे। इंग्लैंड की बी टीम ने पाकिस्तान को हराया। अब T20 में इंग्लैंड की ए टीम से बचने का मुश्किल वक्त आया। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। आइसोलेशन में जाने वाले तमाम खिलाड़ी टीम में वापस। क़यादत इयान मॉर्गन करेंगे। T20 सीरीज का आगाज जुमे से होगा। मुशीर जेल खाना जात एजाज जाखरानी की उबूरी जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का 19 जुलाई तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। नैब को नोटिस जारी। अदालत में हुजूम लाने पर जस्टिस मुनीब अख्तर एजाज जाखरानी पर बरहम। रिमार्क्स दिए आप सरकारी मुलाजिम हैं, इतने लोग क्यों लाए हैं? अदालतों को क्या समझा हुआ है? यकीन दहानी कराएं आइंदा कोई साथ नहीं आएगा। LNG केस, नैब रावलपिंडी को शाहिद खाकान अब्बासी से 63 करोड़ रुपए की वजाहत दरकार। जरा के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म ने एक अकाउंट बतौर इंजीनियर खुलवाया। $5 लाख रकम मुंतकिल हुई। दिसंबर 2016 से जनवरी 2017 के दौरान भारतीय कंपनी से 563 मिलियन शाहिद खाकान के अकाउंट में ट्रांसफर हुए। रकूम की मुंतकली किस मद में हुई, शाहिद खाकान वजाहत देने में नाकाम रहे। कराची में FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल की कार्रवाई। मेगा सेंटर नादरा का डेटा एंट्री ऑपरेटर, गैर मुल्की शनाख्ती कार्ड एजेंट समेत 3 अफराद गिरफ्तार। फ्रॉड में मुलव्वस अब तक नादरा मुलाजमीन समेत 13 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। इस्लामाबाद में सरकारी अफसर पर 20 साला लड़की के रेप का इल्जाम। पुलिस ने ग्रेड 17 के अफसर राना सोहेल अख्तर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरा लड़की ने बयान दिया कि सरकारी अफसर ने नौकरी दिलवाने के लिए पेशावर से बुलाया और ज्यादती का निशाना बनाया।
लड़की का तिब्बी मुआयना कराया जाएगा। आईजी इस्लामाबाद ने वाकये का नोटिस ले लिया। मॉडल नायाब के कत्ल की तहकीकात जारी। पुलिस ने राब्ते में रहने वाले 10 अफराद को शामिल तफ्तीश कर लिया। बयानात कलमबंद। खिड़की के करीब मौजूद इंसानी हाथों के निशानात फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए। मुबैना कातिल की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। तालिबान और अफगान फोर्सेस में झड़पें जारी। अफगान अहलकार हथियार छोड़कर फरार होने लगे। अशरफ गनी का जल्द तालिबान की कमर तोड़ने और जेर कब्जा इलाके वापस लेने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने अफगानिस्तान से 90% इनखला मुकम्मल होने की तस्दीक कर दी। रमा हफ्ते दोहा में तालिबान और अफगान क़यादत के दरमियान मुज़ाकरात मुतवक्किल। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी। काबिज फोर्सेस ने मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। नौजवानों को जिला पुलवामा में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान निशाना बनाया गया। एक हफ्ते के दौरान काबिज फोर्स 12 कश्मीरियों को शहीद कर चुकी। तुम पाकिस्तानी हो, वैक्सीन नहीं लगाएंगे। भारत में शादी करने वाली पाकिस्तानी लड़की से इम्तियाजी सुलूक। कोलकाता के अस्पताल में 30 साला सहर कुरैशी को यह कहकर इनकार किया गया कि वो भारतीय शहरी नहीं। सहर का कहना है 7 साल से भारत में रह रही हूँ, शादी का सर्टिफिकेट और वीजा भी जमा कराया लेकिन वैक्सीन नहीं लगाई। सऊदी अरब में आज़मीन हज के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। तारीखी मस्जिद नमरा और मस्जिद अल-मौशर अल-हराम को नए कालीनों से सजा दिया गया। मनासिक हज की अदायगी नई एहतियाती तदाबीर के साथ होगी। कोई भी बगैर इजाजतनामा मकामात मुकद्दसा में दाखिल नहीं हो सकेगा। ईद की आमद मवेशी मंडियों की रौनक बढ़ गई। खरीदारों को मनपसंद जानवरों की तलाश। व्यापारियों के नखरे भी उरूज पर, मन मर्जी के दाम मांगने लगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं ज़ेशान मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।